Hello, bankers. So, very good evening to all of you. Welcome back. So, in this session, we are going to talk about unit number 5, which is facilities for importers and exporters, right? So, we have already covered the four units of module A. I hope you already gone through these particular one. So, today we will talk about the facilities for exporters and importers, right? So, again, very important unit. Even in if you see the examination of June July 24, so there was number of question based on this particular unit, especially that area of IEC और their related guidelines and all, right? So क्या होता है आपका एक्सपोर्टर्स के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, इंपोर्टर्स के लिए क्या हैं, वो सारी चीजें जिनको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. And this session will go around 1 hour, okay? And we will discuss each and every subtopic of your module A unit 5. Okay, so let's have a quick look about the course content, then we will cover these particular one by one. So the first one is basic objectives and introduction, which is all about the exports. Export regulation is again very important part, right? So then we have exchange and trade control guidelines for exporters, facilities for exporters, export finance, gold card scheme, very important one. Okay. Export data processing and monitoring system, which was introduced by RBI in 2014. Okay, so basically authorized dealers, they have to update in this particular one. Factoring and forfeiting, very important subtopic. Exchange and trade control for importers, import finance, import data processing and manage monitoring system, trade credit, and we have a supplier credit and buyer's credit, right? So these are the subtopic which are part of your unit 5. Chalo. So let's start the discussion with the import export. Okay, so now, like, if you talk about country like India, which is one of the most emerging country in the world, so nowadays we have like not even for only India, it is for every country. Like, we do have our dependency on imports and exports, especially after this new economic reforms 1991-92, right? So like nowadays बहुत सारे organizations हैं, those who deal with export and import activities. In every country or economy, they have a significant role of exports and imports in their economy like China, which is totally depend on their export. ठीक है, सो इंडिया का भी आपका काफी बड़ा अगर हम ग्लोबल ट्रेड के अंदर देखते हैं, सो इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन सो मेनी एक्टिविटीज जहां पे हम लोग आपका मार्केट को डोमिनेट कर रहे होते हैं. ठीक है, so export which generally help you to make your balance of payment in surplus numbers, and कहीं ना कहीं आपका जो गवर्नमेंट के या फिर आरबीआई के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, सो वी कैन फैसिलिटेट आर एक्सपोर्टर्स सो दे कैन गेट बेटर रेवेन्यूज फॉर देयर एक्सपोर्ट एज वेल, राइट? अब यहाँ पे दो कंट्रीज का बेसिकली इंटरेक्शंस आपका हो रहा है. इन एवरी कंट्री दे हैव डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट फिनेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है बैंक आपका कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स के लिए, जिससे वो नए नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकें. ठीक है, तो उन सब से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं और आपका जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें जिनको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सपोर्ट कंट्रोल. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेशंस, so we have around four ministries which are generally involved in this particular one, right? So but अगर हम लोग institutions wise जाते हैं, so these two institutions which are very important one, right? First one is RBI, the Reserve Bank of India, which generally handle a documentation part and payment and settlement. And another one is DGFT, who generally draft the EXIM policy. ठीक है, so Directorate General of Foreign Trade, which generally comes under Ministry of Commerce and Industry. जो आपका हमारी जो EXIM policy है, import export policy है, which is generally designed and drafted by DGFT itself. ठीक है, so in India, export trade is regulated by DGFT, which function under the Ministry of Commerce and Trade Industries of Government of India. RBI, with generally policies and procedures granted under the FEMA regulation that are governed by the RBI. Similarly, import trade also. So for import also, we have DGFT. Import guidelines are generally drafted by DGFT, and
documentation and payment and settlement is taken care by the RBI itself. ठीक है? Apart from this, we have FEMA Act, ठीक है? Foreign Exchange Management Act, and so many other things also. ठीक है? So Reserve Bank of India, with power delegated under FEMA Act 1999, regulate exchange control and receipt and payments of foreign exchanges, part through various guidelines, FEMA amendments, while the Office of DGFT regulate the trade control through the EXIM policy and periodic announcement with a view to expand or control the international business of the country itself. Okay? Apart from these domestic institutions, we have an international organization also who generally take care about the पेमेंट गाइडलाइंस इन अदर्स, दैट इज नोन एज आईसीसी. ये हमने लास्ट उसमें आपका पढ़ा भी था लेटर ऑफ क्रेडिट में, वो यूसीपी 600 जो आपका रिलीज किए गए थे किसके द्वारा, आईसीसी के द्वारा. एंड एलसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट्स है, खासकर जब भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वहां पे. ठीक है? सो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड transactions across the globe facilitate guidelines guide the parties to trade through their documents like UCP 600. Apart from that, uniform rule for collection URC 522, and we have uniform rule for demand guarantee which is URDZ 758, and apart from this we have other rules and regulation of ICC also. ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, ठीक है, इसके बारे में भी हमने आपका थोड़ा बहुत बात किया है पहले कि जो आपके फॉरेक्स डीलर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, या ऑथराइज डीलर्स दे बिकम मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी आपका एक रोल आता है. ठीक है? So Foreign Exchange Dealers Association of India, a self-regulatory organization established in 1958 with approval from RBI. ठीक है? So objective is to promote growth of India's external sector and contribute to the development of फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया. ठीक है? तो ये कुछ एंटिटीज आपका जो मेजर इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिलेगा. नाउ स्पेस इफ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली with regard to export and import, so we have this particular chart which will guide you. ठीक है? तो जहां पे हमारे पास कौन कौन से एजेंसीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब आपको मिलेंगे. ठीक है? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहले, ठीक है, जिसमें RBI which regulate regarding the movement of funds and documents, so under which we have authorized डीलर्स बैंक. ठीक है? सो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3. देन वी जैसे कैटेगरी 1 में क्या था आपके ऑल कमर्शियल बैंक. ठीक है? कैटेगरी 2 आपका अपग्रेडेड एफएफएमसीज, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स एंड आरआरबीज और सम कोऑपरेटिव बैंक्स. कैटेगरी 3 which include DFIs which is domestic financial institution like Exim, SIDBI and all, right. Ministry of Commerce and Industry, जिसके नीचे आपका DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एंड आपका SEPC सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया. DGFT which take care about goods and SEPC which generally take care about the services. Ministry of Electronic and IT which generally take care about the software export. So here we have STPI which is service export software technology park of India, STPI, and SEPC is Service Export Promotion Council. ठीक है? So these are the abbreviations also, so you can go through these particular one. ठीक है? तो ये आपके मेजर इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आपका टुवर्ड द बेसिकली वी कैन से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स और आपका फॉरेन ट्रेड. ठीक है? सो एक्सचेंज ट्रेड एंड कंट्रोल गाइडलाइंस फॉर एक्सपोर्टर्स. सो सबसे पहले हम लोग एक्सपोर्टर्स को पढ़ेंगे एज पर योर कोर्स करिकुलम. ठीक है? देन वी विल गो थ्रू द इंपोर्टर्स. ठीक है? तो अब अगर आपने एक्सपोर्टर को समझ लिया तो इंपोर्टर्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा. आसान क्यों हो जाएगा? जैसे एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट विच इज नोन एज IEC. ठीक है? इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स कोड आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है? तो अगर आप इंडिया से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, so first you have to opt one registration number that is known as IEC number. ठीक है? that is importer exporter code. Authorized dealers जितने भी transactions आपके होंगे उन सबको अकाउंट करेंगे बेस्ड ऑन योर IEC नंबर. ठीक है? तो जैसे आपका इंडिविजुअल के केस में पैन नंबर पे होता है, यहाँ पे दैट कोड जो सारी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करता है जिसके थ्रू RBI, दैट इज कॉल्ड IEC, एंड दिस नंबर इज जनरली जनरेटेड थ्रू DGFT. ठीक है? सो एवरी पर्सन, फर्म, कंपनी engaged in export import trade has to apply to
apply and obtain an importer exporter code number from DZFT. Please do remember this. कौन ये issue करता है? ठीक है. This is a registration number of the firm, company or international trade, and the exporter importer has invariably a code, this code number in all declaration form and etc. ठीक है. जब भी आपकी एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, एडीएफ आपका एक फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं, तो जब भी आप ऑथराइज्ड डीलर्स को अप्रोच करोगे फॉर देयर रेमिटेंसेस, सो दे विल आस्क यू फॉर दिस पर्टिकुलर कोड. ठीक है. सो जहां पे जैसे आपका अगला, जैसे हमारे पास एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म ही है. ठीक है. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म. ठीक है. तो जैसे कोई भी एक्सपोर्ट आपका यहाँ से इंडिया से कोई एक्सपोर्टर करेगा, सो दे हैव टू फिल अ फॉर्म. दैट फॉर्म इज नोन एज एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म. ठीक है. तो जिसमें जिसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं. ठीक है. सो एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, जहाँ पे पर्पज कोड यू कैन सी, इसमें कहीं पे तो मेंशन होगा. ठीक है. सो जैसे आपका फॉर्म नंबर and exporter name and address, consignee a name and address, name of Indian bank and authorized dealers code. ठीक है. देन वी हैव authorized dealers code, RBI अप्रूवल नंबर. ठीक है. सो इसके अलावा authorized dealers एड्रेस, आपका मोड ऑफ रियलाइजेशन. ठीक है. एलसी है या अदर्स डॉक्यूमेंट्स है. ठीक है. पोर्ट फॉर लोडिंग और सोर्सेज पोर्ट, कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज आपका जो इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. सो देर आर सम कोड, आई गेस आई एम जस्ट मिसिंग दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है. कहीं पे तो आपका मेंशन होता है दैट पर्पज कोड एंड अदर्स. ठीक है. आई कोड जैसे यहाँ पे लिखा है आपका. ठीक है. दैट इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड. ठीक है. सो दैट इज जनरली दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो ये आपका, और इवन द डिटेल आपका, सो आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जैसे हमने, अगर आप लोगों ने एलसी वाला, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, सो दैट इज, ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे भी हमें देखने के लिए मिल रहे थे. ठीक है. सो आपका एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, so section 7 subsection 1 subsection 3 of FEMA Act, all export of goods from India, whether in physical form or any other form, required to declared in the prescribed form to the effect that full value export will be realized within the prescribed period and in the prescribed manners. ठीक है. तो इस तरीके से ये फॉर्म आपका जो एक्सपोर्टर्स को फिल करना होता है बिफोर दी, whenever they approach for any kind of exports from India. ठीक है. यहाँ पे सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास क्या है, आपका सॉफ्टेक्स है. ठीक है. ये ध्यान रखें आपका. ठीक है. सो फॉर एक्सेप्ट अदर देन सॉफ्टवेयर, it is made by EDF form. ठीक है. And Softex is generally for softwares. The export of software in non-physical form, so they are generally exported through Softex. आपका. ठीक है. तो ये दो डॉक्यूमेंट्स जो कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट. ठीक है. So with the introduction of electronic data interchange system at certain custom offices where shipping bill are processed electronically, the GR form has since been replaced by the declaration form, EDF, electronic declaration form. ठीक है. तो पहले जैसे आपका आज की डेट में मोस्ट ऑफ जितने भी जो कस्टम ऑफिसेज हैं या जो बड़े बड़े और पोर्ट हैं, वहां पे जो चीजें आपकी होती हैं वो ऑनलाइन तरीके से आपका चीजें चलती हैं. तो आप जीआर फॉर्म ना होके हम लोग क्या फिल करते हैं, आपका एडीआर. ठीक है. सो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन फॉर्म आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो ईडीएफ सॉफ्टेक्स हैं, ये आपका ईडीआर फॉर्म के थ्रू आपका फिल किए जाते हैं. ठीक है. सो ईडीएफ फॉर्म शुड बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट, बी एनेक्सेस टू द relative shipping bill to the concerned commissioner of the custom. ठीक है. तो वहां का जो भी कमिश्नर है उसके पास उनको इसको सबमिट करना होता है. ठीक है. So after verifying and authenticating the declaration in form EDF, the commissioner of custom will hand over the to the exporters one copy of the shipping bill, marked exchange control copy के रूप में उसको वो दे देगा. ठीक है. In which EDF has been approved for the submitted to the authorized dealers. तो ये आपका जैसे exporters they'll fill the EDF form. ठीक है. ऑनलाइन आपका, देन आपका जो कस्टम कमिश्नर है they'll cross verify the things and others, then आपका अप्रूव करेंगे and they'll issue a copy which is known as exchange control copy, and exporters they have to submit this particular one
to the authorized dealers. अब there are some areas, ये बहुत important area आपका part है, which are exempted from the EDF form. ठीक है, कुछ ऐसे areas हैं जहाँ पे you do not have to fill the export declaration form आपका, ठीक है, इस फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं. मोस्टली ये एरियाज आपके कौन से हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के ऐसे कोई भी ट्रांसफर्स होते हैं, या आरबीआई के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, या कोई एड आपका प्रोवाइड की जा रही है किसी कंट्री को, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपका सैंपलिंग के लिए बाहर भेजी जा रही है, या कोई आपका कोई हमने जैसे हमने आपका एयरक्राफ्ट खरीदा, उसका कोई पार्ट खराब है, वो रिपेयर के लिए बाहर जा रहा है, फिर वापस आएगा. सो दीज आर जनरली थिंग्स विच आर जनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ईडीएफ डिक्लेरेशन. ठीक है, तो क्या क्या एरियाज हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, बहुत सारा डेटा आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आप सभी को मिलने वाला है. ठीक है, सो फॉलोइंग एक्सपोर्ट शिपमेंट्स आउट ऑफ इंडिया आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम export declaration form in term of the cases indicated in regulation 4 of FEMA, foreign exchange management, export of goods and services regulation dated 12 of January 2016. कौन कौन से हैं? पहला trade samples of goods and publicity material shipped free of payment. ठीक है, जैसे हमने मार्कर्स बनाए, हम इनको किसी कंट्री में जो हमारा टारगेट मार्केट होने वाला है वहां पे हम इनको सैंपलिंग के लिए भेज रहे हैं. ठीक है, एंड वी आर सेंडिंग दिस पर्टिकुलर वन फॉर फ्री. ठीक है, इसके लिए हम उनसे कोई पेमेंट आपका नहीं ले रहे, जो हमारा वहां का वेंडर है. सो इट इज एग्जेम्प्टेड. पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रेवलर्स वेदर अकम्पनीड और अनअकम्पनीड. तो ये बेसिक आपका जो पर्सनल हम लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं या छोटा मोटा सामान जो लेके चलते हैं. ठीक है, शिप स्टोर्स, ट्रांसशिपमेंट कार्गो एंड goods supplied under the order of central government of such officers as may be appointed by the central government in this behalf or of the military, naval or air forces authorities in India. ठीक है, जैसे कई बार होता है ना कि जैसे राहत पैकेज जो आपके भेजे आते हैं अदर्स, तो वो भी आपके क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे. तो वहां पे बट हाँ, देयर विल बी अ अप्रूवल कॉपी फ्रॉम द डेजिग्नेटेड मिनिस्ट्री, राइट? By way of gift of goods accompanied by a declaration by the exporters that they are not more than 5 lakh rupees in value. ठीक है, तो अगर किसी एक्सपोर्टर के द्वारा कोई गिफ्ट आपका भेजा जा रहा है एंड जिनकी वैल्यू इज लेस देन 5 लाख रुपीस. एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट इंजन एंड स्पेयर पार्ट for overhauling or repair abroad subject to their re-import into India. जैसे हमने एयरक्राफ्ट की बात करी थी, या कोई भी, जैसे हमने कोई आपका जेट परचेज किया या डिफेंस के लिए कोई आइटम आपका आया है, ठीक है, जिसका कोई पार्ट आपका रिपेयर के लिए अब्रॉड जा रहा है और फिर वो वापस आएगा. ठीक है, या कोई भी एयरलाइन कंपनी का जो आपके स्पेयर पार्ट्स हैं वो सब आपका. ठीक है, replacement goods exported free of charge in accordance with the provisions of foreign trade policy in force for the time being. तो अब यहाँ पे जैसे हमने किसी like being an exporter, हमने किसी को आपका कुछ सामान एक्सपोर्ट किए, there was some product was defective. ठीक है, जैसे 1 लाख मार्कर भेजे जिसमें से 10,000 मार्कर आपका डिफेक्टिव थे. ठीक है, तो ये 10,000 मार्कर हम लोग भेज रहे हैं सेम कंसाइनमेंट के तहत, सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड. ठीक है, गुड्स सेंड आउटसाइड इंडिया फॉर टेस्टिंग सब्जेक्ट टू री इम्पोर्ट इंडिया. जैसे कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका टेस्टिंग किसी दूसरे कंट्री में हो रहा है, ठीक है, बट वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो वो वहां जाएगा. सो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन, राइट? इसके अलावा एक्सपोर्ट परमिटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट subject to the term and conditions if any as stipulated in the permissions. ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा कोई एक्सपोर्ट आपका जिसको परमिट किया गया एंड ऑथराइज लेटर के साथ वो आपका जा रहा है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो परमिटेड. सो दीज आर सम एरियाज जहां पे आपको ईडीएफ फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ठीक है, इसके अलावा सारे अदर एरियाज जहां पे ईडीएफ का रिक्वायरमेंट होगा. सो ईडीएफ इज अ डॉक्यूमेंट्स व्हिच एक्सपोर्टर्स need to fill or present with the authorized dealers, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके सारे आगे की जो जर्नी है वो आपका चल रही है. ठीक है, सो नाउ फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. इस यूनिट को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, इसको क्या किसी को भी मत लीजिएगा. ठीक है, मेरा सजेशन तो यही रहेगा. ठीक है, सो एक्सपोर्ट फाइनेंस की हम लोग अब बात करेंगे. जैसे अगर आप लोगों ने एक्सपोर्टर्स के संबंध में कभी भी फाइनेंस को स्टडी किया होगा, तो देयर आर मेजरली दिस कैन बी
divided between two part. One is pre-shipment and another one is post-shipment. ठीक है, pre-shipment is like आपका जब एक्सपोर्ट हो रहा है उससे पहले का, ठीक है, जैसे जिसका जनरल टाइम ड्यूरेशन आपका 90 डेज होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग क्रेडिट, राइट. पोस्ट शिपमेंट्स आपका जो बिल्स डिस्काउंट होते हैं, ठीक है. सो जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनको डिस्काउंट किया जा रहा है, जहां पे फैक्टरिंग, फोरफिटिंग या अदर्स बहुत सारी फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी. So Reserve Bank of India has framed specific guidelines for finance to exporters so as to allow finance at concessional interest rate to make exporters compete with their competitors from other countries and also to boost the export from the country. So RBI first introduced this particular scheme, Export Finance, in 1967. The scheme is intended to make a short-term working capital finance available to exporters at internationally comparable interest rate. Export credit is available both in rupee as well as in foreign currency. So basic static heading. The Reserve Bank of India has also permitted bank allow both packaging credit as well as पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है. तो प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट जैसे हम लोग इसके ऊपर आपका डिस्कशन कर रहे थे. सो exporters they can apply for pre-shipments or they can allow for आपका apply for the post-shipment advances. Pre-shipment में generally आपका it is known as packaging credit. EXIM की पॉलिसी भी इसी से लिंक है आपका, जब आप EXIM को पढ़ोगे वहां पे. पोस्ट शिपमेंट इज बेसिकली आपका जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है. कंपनीज दे नीड फंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, सो दे कैन डिस्काउंट दोज पर्टिकुलर बिल, जैसे जिसमें आपका फैक्टरिंग, फोरफिटिंग ये आपका हो सकता है, या अदर्स आपका they can apply for the other kind of loan. So first we will talk about packaging credit facility for exporters. It is also known as pre-shipment. Packaging credit क्या हो गया, इसका ड्यूरेशन होता है 90 days, ठीक है. सो जो डेट ऑफ शिपमेंट है उससे उसके 90 डेज के लिए आपका ये लोन आपका लिया जा सकता है, ठीक है. उसके भीतर आपका 90 डेज के लिए द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन इज 90 डेज बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे आपका जैसे कोई भी अगर हम लेट्स से हम अगर मार्कर्स को आपका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो लेबर की वेजेस है या इसका असेंबलिंग है, पैकेजिंग है, उन सब चीज़ों के लिए जो फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो बैंक exporters they can approach to banks and they can avail these kind of loans which is allowed by the RBI. तो इसमें आपका पैकेजिंग क्रेडिट लोन और एक्सपोर्ट पैकेजिंग क्रेडिट, एडवांस अगेंस्ट गवर्नमेंट रिसीवेबल्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड अदर्स, ठीक है. जैसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करती है कि अगर आप इन कॉमोडिटीज को एक्सपोर्ट करते हैं सो विल गेट सम ड्यूटी ड्रॉबैक ऑल्सो. वहाँ पे इनिशियली वो चार्ज होंगे बट लेटर ऑन यू कैन ड्रॉबैक दोज पर्टिकुलर, तो उनको भी आप पहले अवेल कर सकते हैं. So packaging credit loan or export credit is essentially a working capital advance allow for a specific purpose of procuring, processing, manufacturing of goods meant for export only. It could cover all costs prior to shipment of the finished good like packaging, local transportation, labor charges and etc. ठीक है, so these are the areas. So usually it is for working capital management, ठीक है. The borrower is a bank of customers, ठीक है, पहली चीज. They should have export import code, ठीक है. So IEC code आपका, ठीक है, allotted by DGFT. Their name should not appear under the caution list of RBI. Now this is a new thing, ठीक है. Caution list क्या होता है, ऐसे exporters जिनके ट्रांजेक्शन्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है पास्ट उनमें, ठीक है. सो ऑथराइज्ड डीलर्स they'll highlight those particular exporters to RBI. वो बोलेंगे भैया ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, and RBI will put them in a caution list, ठीक है. तो ये आपका सीक्वेंस चलता है. इनिशियली इट इज ट्रिगर्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर्स, उनके पास ये राइट होते हैं, ठीक है. ये डेली बेसिस पे चीजें होती है, ठीक है. तो आपका जैसे उसने कुछ गड़बड़ किया है तो उसको आपका जो भी गाइडलाइंस उनको फॉलो नहीं करें ना दस, so RBI will put these kind of exporters in caution list, and if you are part of caution list, RBI will release that particular one. ED PMSP अपडेटेड रहते हैं कौन कौन से caution list में हैं, तो वो लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है. They should not be under specific approval list of ECGC, ठीक है. एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के भी आपका वो caution list में या आपका स्पेशल अप्रूवल लिस्ट में नहीं होने चाहिए, ठीक है.
इसके अलावा दे हैव द कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड हैज जेन्यून एंड वैलिड एक्सपोर्ट ऑर्डर विच इज बैक्ड बाय एलसी। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं आपका विदाउट रिकोर्स वाली जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो जहां पे आपका दे हैव सॉलिड प्रूफ फॉर दैट पर्टिकुलर वन पेमेंट्स एंड अदर्स। एक तो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए, दूसरा दे हैव अ कंफर्मेशन ऑफ द पेमेंट्स। ठीक है, आपका नो योर कस्टमर गाइडलाइंस आर कंपाइल्ड विद, ठीक है, तो केवाईसी गाइडलाइंस आपकी होनी चाहिए। तो पहला आपका प्री शिपमेंट, अब दूसरा हमारे पास है पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है ना, दीज गाइडलाइंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम भी जा रहे होंगे, सो यू विल सी जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, सो देयर विल बी मल्टीपल स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है, 3 सही है, और वो उनमें से एक आपका इनमें से पॉइंट होगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, राइट। चलो अब आते हैं हमारे पास पोस्ट शिपमेंट। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट्स आपके बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट्स इज बेसिकली जहां पे जो एक्सपोर्टर है उसने अपनी सारी कमिटमेंट फुलफिल कर दी है। ठीक है, कंसाइनमेंट में जा चुका है सामान, नाउ अब बिल्स रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, तो जैसे दो हमने पढ़े थे, एक तो होता है उस सेंस आफ्टर लाइक जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे वैसे ही पेमेंट हो जाएगा, तो वहां पे तो रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बट ऐसा बार बार नहीं होता। यूजुअली पेमेंट्स कैसे होती हैं आपका, दे हैव अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन। एक तो आपका जो शिपिंग का टाइम होता है 30 days, 60 days, 90 days, देन आपका दैट पर्सन और द इम्पोर्टर विल रिसीव द गुड्स, देन उसके बाद दे आस्क फॉर 30 days, 40 days। तो ऐसा आपका जो बिल्स रिसीवेबल्स है उनमें कई बार टाइम हो जाता है। ठीक है, सो नो, अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस है उनको देखते हैं पहले। ठीक है, सो नो प्री शिपमेंट आपका क्रेडिट इज अवेल बाय द दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर। ठीक है, तो पहले उसने आपका कोई भी पीसीएल आपका नहीं लिया है। ठीक है, सो आपका जो प्री शिपमेंट जो लोन है वो नहीं लिया हुआ है। ठीक है, हैज बीन अवेल बाय हिम against the same order or LC from the any other bank. Bank should call credit report or status report on the foreign buyers. तो जो फॉरेन बायर्स है, ठीक है, उसका क्रेडिट रिकॉर्ड, क्योंकि डिफॉल्ट की प्रॉबिलिटी है, सो दैट दैट विल बी चेक बाय दी आपका जो भी बैंक होगा, ठीक है, जो एक्सपोर्टर को फाइनेंस कर रहा है। एक्सपोर्टर शुड सबमिट स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द गुड्स ऑन विच पीसीएल हैज बीन अलाउड। ठीक है, तो अगर कोई पीसीएल आपका अलाउ है तो उस पर भी आपका ये चेक होगा। ठीक है, if the exporter are covered under letter of credit, bank would need to be satisfied about the standing of the क्रेडिट ओपनिंग बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है आपका, जैसे यूएस का एक बैंक था एबीसी जिसने एलसी जारी किया था। ठीक है, तो दैट मींस ही इज प्रोवाइडिंग स्टैंड बाय गारंटी, बट हाँ उस बैंक की सॉल्वेंसी को चेक करना दैट इज अ स्टेप इन दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, कि उस बैंक की कैपेसिटी है वो फुलफिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो बैंक का क्रेडिट भी यहाँ पे चेक किया जा रहा है। बैंक में ऑल्सो लुक इनटू द रेगुलेशन, द पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बायर्स कंट्री। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मतलब एक तो हमारी कंट्री के साथ उनके रिलेशन, अर्लियर देयर वाज अ टाइम विद मालदीव, ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, या कोई कंट्री लाइक जैसे अभी बांग्लादेश आपका फेस कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी ना हो जहां डिफॉल्ट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी वेरियस टाइप एज अंडर, अब कहाँ कहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने आपका किन एरियाज में क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं। नाउ पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस कैन बी वेरियस टाइप, जैसे पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस इज एसेंशियली एंड एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, post shipment finance involve handling of export documents, sending the documents of the foreign banks and collecting the funds thereof। ठीक, अब जनरली इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप सपोज दैट इफ यू आर गोइंग थ्रू दी फोरफिटिंग या फैक्टरिंग रूट, ठीक है, तो उसमें जनरली क्या होता है, जैसे देयर इज एक्सपोर्टर हुज बिल इज 10 million US dollar। ठीक है, 10 million US dollar का उसका ये ट्रेड था। ठीक है, सो नाउ सपोज दैट इट इज अ केस ऑफ फैक्टरिंग। ठीक है, फैक्टरिंग के थ्रू आपका वो बैंक से देयर इज अ एक्सवाईजी बैंक हु इज फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर एबीसी एक्सपोर्टर। ठीक है, एबीसी एक्सपोर्टर के लिए आपका फैक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, सो फैक्टरिंग इज ऑलवेज ऑन एन ओपन अकाउंट बेसिस। ठीक है, तो इन दोनों का पहले से आपका लिंक है, जिस इस एबीसी एक्सपोर्टर के जितने भी एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं दैट इज जनरली हैंडल्ड बाय द एक्सवाईजी बैंक। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
ऑन बिहाफ, जैसे एक्सपोर्टर ने आपका ये 10 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया, अब इसने इसमें से जैसे सपोज दैट 80 to 85% का आपका अमाउंट ले लिया किससे, एबीसी बैंक से, ठीक है। सो इसको आपका डिस्काउंट करवा लिया और एक जो भी उस पर इंटरेस्ट या कमीशन उन दोनों का था उसको डिसाइड करने के बाद, ठीक है। सो रिमेनिंग आपका 20 to 15% इज ऑन ओपन अकाउंट बेसिस। अब दूसरा ट्रेड होगा वहां पे। नाउ आफ्टर दिस कॉन्ट्रैक्ट, दिस factor is XYZ bank, they'll take care about all these particular things, ठीक है। तो वहां पे जो बैंक है, they'll take about the export documents या जो भी लेजर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, that generally get managed by the bank itself, ठीक है। So advance against bill sent on collection, it can be first, advance against exporter on consignment basis, advance against undrawn balances and advance against duty drawback, ठीक है। So these are the major finance areas which can exporter avail from their bank, और जो भी जिस भी बैंक के साथ वो आपका ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब आता है आपका EDPMS, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे आपका EDPMS है वैसे ही आपका इंपोर्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, दोनों ही 2014 के अंदर आपका इनको लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। बेसिकली इट्स अ पोर्टल, ये एक आपका पोर्टल है, ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल आपका है, वेब बेस्ड पोर्टल, ठीक है, जिसमें ऑथराइज डीलर्स आपका जितने भी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन सबका डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहा होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा डिफॉल्ट भी कर रहा है तो उस डिफॉल्ट की जानकारी भी, सो आरबीआई कैन पुट दैट पर्टिकुलर एक्सपोर्टर इनटू योर कॉशन लिस्ट या अदर्स ऐसे जो रहेंगे, ठीक है। So RBI commenced a software export data processing and monitoring system in 2014. This is an online program for all Indian banks to record exporters' transactions with them online. Thus, RBI can increase the transparency of record of dollars payments flow between India and abroad. ठीक है, तो यहाँ पे सारे हमारे पास रियल टाइम बेसिस पे आपका डेटा रहने वाला है। Authorized dealers bank can access the updated list of caution listed exporters through EPDMS on daily basis, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कोई ऑथराइज डीलर बैंक इस प्लेटफॉर्म से लिंक है, अगर उनके उसमें हो रहा था, they'll update on that particular one and RBI will mark that particular exporter as caution list, तो वो दूसरे उसके पास नहीं जा पाएगा, पकड़ा जाएगा, ठीक है। RBI will caution or decaution the exporters based on the recommendation of authorized dealers bank, ठीक है। डिकॉशन भी, अगर जैसे एक से एक कई बार जानबूझ के गलती नहीं तो हो गई, उसने उस गलती को सुधार दिया, तो उसको ऑथराइज्ड डीलर विल रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो एंड आरबीआई विल डिकॉशन। कॉशन का हमने बात किया। ऑथराइज्ड डीलर्स मे फॉरवर्ड इट्स फाइंडिंग टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई recommending inclusion the name of exporters in the caution list also, ठीक है। तो caution and decaution, the guidelines require bank to record advance remittances received for export in EDPMS, कोई भी एडवांसेस अगर वो रिसीव करा, ठीक है, लेट्स से 10 मिलियन यूएस डॉलर का था, उसमें से 3 मिलियन यूएस डॉलर उसने दिए, सो दैट विल आल्सो गेट अपडेटेड इन दिस, और जो 7 मिलियन जो अभी आउटस्टैंडिंग है उसका भी अपडेट यहाँ पे रहेगा। Besides, bank will also be required to record old outstanding advances received. कोई ऐसा पुराना था जो आपका पेंडिंग में था, वो अगर रिसीव हुआ तो वो भी यहाँ पे अपडेट किया। तो एवरीथिंग अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, तो एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड और इंपोर्ट है तो इंपोर्ट, दोनों ही आपका सेम पोर्टल है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर की एंट्री के साथ आपका, ठीक है। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बैंक भी ऑफर करते हैं, दैट इज गोल्ड कार्ड स्कीम, ठीक है। तो गोल्ड कार्ड स्कीम आपका जनरली क्या है, गोल्ड कार्ड स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स, ऐसे वैल्यू एक्सपोर्टर्स के लिए या जिनकी क्रेडिट वर्थिनेस काफी हाई है और या जो काफी समय से सिस्टम में काम कर रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड एक्सपोर्टर्स। गुड एक्सपोर्टर्स मींस आपका उनका जो रिलेशन है, कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया, अदर्स टाइमली बेसिस पे पेमेंट करते हैं अदर्स, वो सब, एंड इट इज गेट इशूड बाय ईच एंड एवरी बैंक इन इंडिया नाउअडेज। आपका बैंक भी इसको इशू करता है। हर एक बैंक में कुछ अलग अलग ऑफरिंग्स भी होती हैं, जैसे आपको एडिशनल क्रेडिट मिल सकता है 20% तक का, या फिर आपका जैसे मतलब जो अदर एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से थोड़ा सा आपको कम रेट पे मिलेगा। आप जैसे डेबिट कार्ड देते हैं, चेक फैसिलिटी देते हैं या फॉरेन रेमिटेंसेस देते हैं, ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द इंडिकेशन मेड बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी,
2003-4 to launch a gold card scheme for credit-worthy exporters with good track record for easy availability of export credit on best terms. RBI has drawn up gold card scheme. ठीक है, तो ये भी स्कीम आपका आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई एडवाइस टू बैंक्स दे कैन कम अप विद दिस पर्टिकुलर। क्या क्या फीचर्स होते हैं तो ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो ऑल क्रेडिट वर्दी एक्सपोर्टर्स including those in small and medium sectors with good track record would be eligible for issue of gold card scheme by individual banks as per the criteria to be laid down by the letter. Gold card under the scheme may be issued to all eligible exporters, including those in the small and medium sectors who satisfy laid down conditions. The scheme will not be applicable for exporters blacklisted by ECGC, ऐसे एक्सपोर्टर जिनको ECGC के द्वारा blacklist किया गया, और having overdue in excess of 10% of previous year turnover। जैसे किसी कंपनी ने आपका, किसी एक्सपोर्टर ने आपका, जैसे उसका जो टोटल रिसीवेबल्स था वो था आपका 10 मिलियन यूएस डॉलर, और अभी तक भी वो रिसीव नहीं हुआ, उसमें से सपोज दैट अभी आपका, मतलब सपोज दैट 50% आ गया बट 50% अभी भी पेंडिंग में है आपका, ठीक है। सो दैट मींस दैट इज मोर देन 10%, तो उनको भी आपका ये इशू नहीं किया जाएगा, राइट। गोल्ड कार्ड होल्डर्स एक्सपोर्टर्स depending on their track record and credit worthiness will be granted better term of credit including rate of interest than those extended to other exporters। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के अंदर कंसेशन आपका मिलेगा, ठीक है, जो कि मिलना चाहिए बिकॉज they are value exporters for the nation। Bank would clearly specify the benefit they would be offering to gold card holders। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ बैंक आपके एडिशनल अलग अलग आपके ऑफर्स देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो, ठीक है। The sanction and renewal of limit under the scheme will be based on a simplified procedure to be decided by bank itself। ठीक है, ये कौन डिसाइड करेगा? बैंक। ठीक है, तो जो इनिशियल लिमिट है आपका, उसमें अगर उसको इंक्रीज करना, कैसे इंक्रीज होगा, उसकी टर्म एंड कंडीशन विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, taking into account the anticipated export turnover and track record of exporters। The bank may be determine need-based finance with the liberal approach। ठीक है, in principle limit would be sanctioned for a period of 3 years। ठीक है, जो इनिशियल आपका, ठीक है, जैसे आपको किसी को 5 करोड़ का दिया, सो दिस इज इन प्रिंसिपल आपका बेसिक उसके लिए, ठीक है। सो इट विल बी फॉर 3 years, उसके बाद उसमें जो भी चेंजेस होंगे विद अ प्रोविजन फॉर ऑथेंटिक रिन्यूअल सब्जेक्ट टू fulfillment of term and conditions of the sanctions, और स्टैंड बाय लिमिट of not less than 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। So I'll highlight this particular one, ठीक है। So please do remember this one. This is one of the core feature of your gold card scheme। ठीक है, so standby limit का मतलब है, like let's say there is a gold card scheme जिसका लिमिट है आपका 10 करोड़, ठीक है। तो अब इस पे आपका एट ए टाइम, जैसे कोई एक्सपोर्टर आपका जिसको ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, सो दे कैन बेसिकली लाइक जैसे 10 करोड़ है तो उसका 20% तक एक्स्ट्रा व्यू आपका जा सकते हैं, ठीक है। सो स्टैंड बाय लिमिट नॉट लेस देन 20% ऑफ द असेस्ड लिमिट may be additionally made available to facilitate urgent credit need for executing sudden orders। ठीक है, तो जैसे अगर 100 करोड़ है तो 120 करोड़ तक का, या वो ये आपका कितना होगा आपका बेसिकली बैंक डिसाइड करेगा, बट मिनिमम इट विल बी 20% विच इज आपका एज पर द गाइडलाइंस। तो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। Gold card holders would be given preference in the matter of granting packaging credit in foreign currency also। Bank would consider waiver of collateral and exemption from ECGC insurance on the basis of cardholders credit worthiness and track record also। ठीक है, एक और facility, the facility of further value addition to their card through supplementary services like ATM, internet banking, international debit and credit cards
may be decided by the issuing bank। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑफरिंग्स होते हैं कि हम जिससे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके आए, राइट। सो दिस इज वन। तो गोल्ड कार्ड स्कीम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। जैसे मेरे को आपका ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिला था, सेम चीजें यहाँ पे भी, ठीक है। वो आपका उसी तरीके से आप इसको देख सकते, ऐसे ही आपके बैंक का भी, हर एक बैंक आज के डेट में इसको ऑफर करता है, जो वैल्यू एक्सपोर्टर्स है उन सबको, ठीक है। सो अब अगर हम लोग बात करें पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस में, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग, ठीक है। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। सो अगले 5 से 7 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुने विद फुल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको अगर इसको ब्रीफ करूं, ठीक है। सो अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टरिंग का, ठीक है। सो फैक्टरिंग इज बेसिक, फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग, ठीक है। सो इन दोनों में डिफरेंस आपका क्या है, यहाँ पे इट इज लाइक जो एक्सपोर्ट जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, ठीक है। लेट्स से देयर इज एन एक्सपोर्टर्स हु इज गोइंग टू रिसीव 10 मिलियन यूएस डॉलर का इसका एक्सपोर्ट है आपका, ठीक है। सो देयर इज अ एक्सपोर्टर कॉल्ड एबीसी हु ओन दिस पर्टिकुलर बिल। अब ही इज गोइंग टू रिसीव दिस पर्टिकुलर बिल आफ्टर पोस्ट शिपमेंट 6 मंथ, ठीक है। 6 महीने के बाद ये इसको रिसीव करेगा, क्योंकि 3 महीने तो ये शिपमेंट में ही रहेगा, ठीक है। उसके तीन रिसीव करने के 3 महीने के बाद वो देगा। और अब ये हो सकता है इट कैन बी बैक बाय एलसी और नॉट, ठीक है। दो ही सिचुएशन हो सकती है, ये बैक बाय एलसी भी हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ फोरफिटिंग, फोरफिटिंग तभी होगी इफ इट इज बैक बाय एलसी, ठीक है। और इसीलिए हम लोग फोरफिटिंग को बोलते हैं विदाउट रिकोर्स, जहां पे आपको कोई और गारंटी रखने की जरूरत नहीं होगी। एंड इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, ठीक है। तो आपका जो फोरफिटिंग है वहां पे जनरली क्या होता है कि जो फैक्टर है, फैक्टर इज योर बैंक, ठीक है। सो जो भी आपका, जैसे सपोज दैट एसबीआई, सो इन केस ऑफ दिस एसबीआई विल लाइक, ये जो आपका एबीसी बैंक की सारी ट्रांजेक्शन है दैट इज जनरली हैंडल्ड बाय आपका एसबीआई, ठीक है, एज अ फैक्टर, ठीक है। एज ए फैक्टर आपका एसबीआई इसकी सारी ट्रांजेक्शन को होल्ड कर आपका मैनेज कर रहा है। एंड हर एक बिल पे दे अलाउ आपका अराउंड 80 to 85%, ठीक है। तो इमीडिएट पेमेंट्स आपकी जो होंगी, जैसे इसने ये कंसाइनमेंट आपका शिपमेंट में गया, आपका पोस्ट शिपमेंट हो गया, ठीक है। शिपमेंट होने के बाद आपका एबीसी कैन अप्लाई विद एसबीआई कि भैया आप हमें आपका 80 मिलियन का, सॉरी 10 मिलियन का 80% दे दो, तो वैसे 8 मिलियन, बाकी आपका इतना कमीशन, ये सब, ठीक है। फिर दूसरा कंसाइनमेंट होगा, इसने एबीसी ने एक दूसरा कंसाइनमेंट किया, तो एबीसी की जितनी सारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो किसके द्वारा मैनेज की जा रही है, एसबीआई के द्वारा। सो इट इज जनरली नोन एज एन ओपन अकाउंट बेसिस, इट इज बेस्ड ऑन ओपन अकाउंट, ठीक है। ओपन अकाउंट का मतलब ही यही है कि जैसे इसका 80%, फिर 20% अगली बार मिल जाएगा, फिर अगले वाले का 80%। सो इट कैन बी विद और विदाउट रिकोर्स, जहां पे एसबीआई क्या रख सकता है, थोड़ा बहुत इस काइंड ऑफ जो अमाउंट है उसका एज अ गारंटी। ये आपका दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपका फोर्थ, अगर हम लोग फोर्थ फिटिंग के केस में बात करें, यहाँ पे 100% बिल गेट डिस्काउंट, ठीक है। 100% बिल डिस्काउंट आपका हो जाता है जो भी फाइनेंसर आपका होगा, ठीक है। सो सपोज दैट देयर इज XYZ फाइनेंशियल, ठीक है, जिसने एबीसी से, या आपका देयर इज अ एबीसी एक्सपोर्टर्स, ठीक है, उसने इसका 100% बिल डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। मतलब इट इज बैक बाय एलसी, ठीक, इसलिए इसका एलसी बैक होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा बहुत गारंटी आपका है, या ओपन अकाउंट पे दूसरे ट्रांजेक्शन का पैसा सब कुछ है। यहाँ पे इनका रिलेशन, XYZ एंड एबीसी का रिलेशन वन टाइम काइंड ऑफ है, ठीक है, कि हमें ये आपका इतना पैसा मिलने वाला है, आप इस इतना कमीशन हो, इतना हमें आप अभी पेमेंट कर दो। सो यहाँ पे अगर एलसी बैक नहीं होगा तो हो सकता है कल के डेट में डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है। सो दैट इज द वन, सो इट इज ऑलवेज बैक बाय एलसी, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट्स आपका, कि जिससे एक स्टैंड बाय गारंटी दूसरी कंट्री का बैंक उसको मिलेगा। In both the cases, after entering into factoring or forfeiting, the entire ledger is managed by the factor और दी फाइनेंशियर, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर बोलते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियर आपका बोलते हैं। एक्सपोर्टर को फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो बिल सबमिशन है या आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय दी आपका जो भी उसके लिए फैक्टर, या जो फैक्टर या आपका जो फाइनेंशियर होगा उसके द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, आपकी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन है। सो बिसाइड द रेगुलर फाइनेंसिंग एवेन्यूज फ्रॉम बैंक, द एक्सपोर्टर आल्सो हैव एक्सेस टू other avenues of financing which also act as risk management product, factoring and forfeiting। तो पहले फैक्टरिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज continuing agreement between a financial institution which is known as
फैक्टर जैसे हमारे केस में एसबीआई था, एंड अ बिजनेस कंसर्न जैसे हमारा कौन था, एबीसी था, ठीक है। सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू ट्रैक कस्टमर्स ऑन ओपन अकाउंट बेसिस, ठीक है, open account basis whereby the factor purchase the client book debts either with or without recourse, ठीक है। so recourse means kind of guarantee या कोई security आपका, ठीक है। so it can be with security or without security to the client and in relation there to control the credit extended to the customers and administrators the sales ledger, ठीक है। तो इसके बाद जो सारा sales ledger है that is generally handled by the factor, right। सो यहाँ पे आपका मैंने समराइज करके आपके लिए रखे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। सो इमीडिएट फाइनेंसिंग अप टू 75 to 80% of the invoice value, no need for LC, thus saving cost for the importers, credit check on importers or buyers, sales ledger maintenance, credit protection on all approved debit limits, advisory services for new areas, avenues in countries or importers, ठीक है। So these are some facilities which are generally provided by factor to the exporters और it is an open account basis transaction, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो गया, दो कंपनीज, एक एक्सपोर्ट कंपनी है, एक आपका बैंक, उन दोनों के बीच में काइंड ऑफ एक परमानेंट रिलेशन है जहां पे बैंक उसको फाइनेंस कर रहा है उसकी एक्सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर और आपका दोनों का ही फायदा है, एक विन विन सिचुएशन, ठीक है। सो क्या क्या फैसिलिटीज आपका प्रोवाइड की जाएंगी, सो नाउ विल नॉट गो इन डिटेल, आपको उस पॉइंटर से ही समझ में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आई शेयर दिस पीडीएफ, ठीक है। पहला, डेट एडमिनिस्ट्रेशन इज टेकन केयर बाय फैक्टर, ठीक है। दूसरा, आपका क्रेडिट प्रोटेक्शन आपका हो गया, ठीक है। तीसरा, फैक्टर फाइनेंसिंग आपकी होगी, ठीक है। सो ये कुछ फैसिलिटीज आपका विच एक्सपोर्टर विल गेट फ्रॉम द फैक्टर। दूसरा आपका फोरफिटिंग, ठीक है। फोरफिटिंग जैसे हमने बोला इट इज विदाउट recourse, ठीक है, बिकॉज it is backed by LC, ठीक है। So another product for financing of exporters export receivable is forfeiting. It can be defined as a mechanism for financing by discounting of export receivables without recourse, ठीक है, to the exporters or seller for a medium term on a fixed rate basis for full value of contract or invoice, ठीक है। In another word, forfeiting the purchase by the financier of medium export claims on the buyers without recourse to the exporters. It is a source of finance and not a type of credit insurance. As such, no other cost other than financing cost are involved in this particular one, ठीक है। तो आपका इस तरीके से take away political and commercial risk associated with export receivables, make 100% finance against invoice drawn without recourse facility, freedom from credit administration and follow-ups जो वहाँ पे भी था, cost savings on export credit insurance beside related paperwork, fixed rate of finance, freedom from movement of interest rate for the tenure of the bill, ठीक है। तो ये आपका एक चार्ट मैंने कुछ पॉइंटर्स के थ्रू फैक्टरिंग एंड फोरफिटिंग दोनों के बीच के डिफरेंसेस को समराइज किया, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस आपको मिल सकते हैं। फैक्टरिंग इज अ शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन वेयर फोरफिटिंग इज अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन। Forfeiting is factoring can be drawn with or without recourse, although forfeiting is done without recourse. Factoring is applicable to both foreign and domestic transactions. Forfeiting applicable only to international transactions. Factoring is appropriate for ongoing open account sales, and forfeiting, which is that are not backed by LC, accepted by bill of exchange, whereby forfeiting is appropriate for one-time transaction which are backed by LC, ठीक है। आपका factoring necessitates a continuum arrangement between the factor and the customer in which sales are routed by the factor, बट इन forfeiting it is a one time, so यहाँ पे आपका वो नहीं रहेगा। तो जो हमने अभी तक का पूरा इतिहास पढ़ा उसको जो एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से मिलेगा, इन 5 स्टेटमेंट में से 4 स्टेटमेंट मिलेंगे और उन 4 में से एक गलत होगा जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। So this is all about your facilities for exporters. Now I'll check the time.
सो देन विल कंटिन्यू, यस हाँ वी डू हैव टाइम, ठीक है। सो नाउ आपका फैसिलिटीज फॉर इम्पोर्टर्स, अब यहाँ पे आधी चीजें आपको पहले ही समझ में आ गई कि जैसे विल बी रिक्वायरिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, नंबर, ठीक है, आईईसी का रिक्वायरमेंट होगा। अगेन वी नो अबाउट द जैसे DGFT who generally design the import policies for India, and we have RBI who generally handle the documentation part and payment and settlement, तो थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। Keeping in view the need to conserve the precious foreign exchange and to guard the countries from scrupulous import and bogus outward remittances, various export import regulation, this basic है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The physical movement of goods into India is regulated by foreign exchange foreign trade policy formulated by DGFT. The regulation relating to payment of such import and import are governed by uh, EXIM controlled regulation frame under FEMA 1999, and FEMA is governed by RBI, ठीक है। सो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड आपका तो दो मेजर बॉडीज, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़े थे, ठीक है। आईईसी का रिक्वायरमेंट होगा, कोई अगर इंपोर्टर भी होगा तो उसको भी आपका आईईसी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। सो फ्रीली परमिसिबल और इंपोर्ट लाइसेंस, while authorized dealers are required to ensure that goods imported or intended to be imported are as per the current foreign trade policy, the goods can be freely imported or can be imported under specific license issued for the purpose by the DGFT. This has to be ensured prior to making import remittances, handling of import bills for collection or opening of letter of credit for import of goods. For this purpose, the authorized dealer should verify foreign trade policy or public notice issued by DGFT, ठीक है। तो यहाँ पे DGFT की जो गाइडलाइंस है ना, सेम। अब यहाँ पे ना एक important point आएगा अभी, ठीक है। So that is there is a form. Any person who want to make a remittance for import should make an application as prescribed by RBI to authorized dealers. तो जैसे आपका एक्सपोर्ट में था वैसे ही, ठीक है। आपका the application should contain the detail of currency, the total value of imports, commodity, the license number, along with the undertaking by the importers that they will comply with the exchange control regulations, kind of declaration, ठीक है। So import आपका finance, there was one license, एक आपका ना एक फॉर्म होता है, ठीक है। सो मे EBR आपका इसको बोलते हैं या IBBR समथिंग, देयर इज अ फॉर्म, मे बी इट विल कम, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको करा दूंगा उसको कभी, ठीक है। सो इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सो LC हम लोग जानते हैं, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा सेशन लगा करके। Importer get LC limit sanction from his bank and establish LC on DA basis, उसेंस, ठीक है। सो उसेंस आप ये मतलब डिमांड बेसिस हो सकता है, उसेंस बेसिस हो सकता है, thereby getting credit from the overseas suppliers on the strength of his bank credibility, right? Import loan, such loan are at time granted against imported raw material or goods meant for trading. The loan can be against a pledge of goods or hypothecation to the financing bank, ठीक है। तो एक तो LC है हमारा, और LC को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पूरा एक यूनिट आपका, ठीक है। सो LC इज the most important documents in foreign trade, import export दोनों साइड में आपका, ठीक है। इसके अलावा भी we do have options for importers, आपका जो importers जिसके थ्रू लोन दे सकते हैं, so it can be आपका जो कहीं ना कहीं उनको प्लेस और हाइपोथिकेट किया जाएगा with some securities, right? Importers prefer such loan even at higher rate of interest, waiting for the prices of the goods to go up and to take benefit of depreciating domestic currency as well, ठीक है। So trade credit आपका जिसमें suppliers credit first one is, ठीक है। So that point is missing I guess from this. I'll check that was part of this unit only or somewhere else, कि जहाँ पे ना we have to take a prior, मतलब we means authorized dealers, they have to take prior approval from RBI before sanctioning that particular loan. That is known as loan reference number or something, ठीक है। अगर वो किसी और यूनिट में होगा others, I'll check that particular one. If it is part of this unit, I'll make sure कि I'll do a video based on that particular one, ठीक है।
So suppliers credit directly extended by overseas suppliers of goods, ठीक है, to the importers. So suppliers credit आपका क्या हो गया कि जैसे जो exporter है उसने finance कर दिया. So that is the one, ठीक है, to the importers. As in domestic market, in international market also, the payment terms are either side or credit. The period of credit normally depend on the necessity of the for the exporters or sellers of the goods to increase sales. The demand of the goods in the market requirements in this. ठीक है? The period of suppliers credit from the date of shipments, it is 3 years for the import of capital goods. For non-capital good, so it is 1 year, up to 1 years, or the operating cycle, whichever is less. The maximum amount of suppliers credit per import transaction that bank can approve is 50 million US dollars. So suppliers credit basically जो आपका suppliers is providing that funds to the buyers, ठीक है. So आपका जो buyers आप वहां हमारे वहां से लो, हम आपको फाइनेंस करते हैं and you have to sell that particular in the market and then you have to repay us. Simple सा आपका, ठीक है. So that is the one. Buyers credit आपका, the buyer's credit arranged by the importer or buyers from a bank or financial institution outside his country to settle the payment of importers. In short, credit arranged by the buyers to settle import payments irrespective of period of credit. ठीक है, एक simple सा. As such, the importers approach his bank and request for arrangement of payment to the exporters on immediate terms. The bank through their own resources or correspondent relationship tie up with this. एक बहुत basic simple सा, जैसे एक there is a importer from India, वो आपके बैंक को आपके बैंक correspondent banking के through they are making payments to sellers in their own sellers country, वो वहाँ की जो home country है उसमें, ठीक है. Like in the case of supplier credit, the period of buyer's credit, from the date of shipments to 3 years. The good thing is we have same timing, ठीक है, for capital goods. For non-capital, it is up to 1 year. So दोनों के केस में आपका same है, or the operating cycle, whichever is right. Like supplier credit, the maximum amount of buyers पर import transaction is 50 million, ठीक है. तो ये 3 pointers याद रख लें, ठीक है. वो buyers credit में हो या supplier credit में, दोनों जगह ही आपके amounts क्या है आपका same है, ठीक है. चलो, so this is it, okay. तो ये हमारा facilities for exporters and importers. जैसे हमने समझा ना, यूनिट का 80% वॉज अबाउट एक्सपोर्ट. ये आपका गवर्नमेंट का भी मतलब बेसिकली रवैया रहता है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोनॉमी, ठीक है. तो इसलिए उस साइड में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे, और एग्जामिनेशन में भी वैसे आपको मिलेगा, ठीक है. सो प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. आई होप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है. इफ़ यू हैव सम कंसर्न और इफ़ यू हैव सम क्वेरीज, please do mention into the comment section, and in comment section I'll share the telegram group link also, so you can join through that particular one, okay. And कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है. And if you like this particular session, do share with your friends also, those who are preparing for CIB examination in upcoming years, so they can also get benefited from these particular things, okay. चलो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं. I'll see you tomorrow with unit number 6, okay. So this is it from my side. Thank you for watching this session. Bye bye, take care all, have a nice day. Thank you.